स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। चलिए, तो आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन इज गिवन, angle POR is to angle ROQ equal to 5:7. You see, this is POR and ROQ. This is ROQ equal to 5:7. You have to find all the angles. That means we have 4 angles over here: angle 1, angle 2, angle 3, angle 4. Is it clear? Okay. You can name also all the angles. You can write this angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, just to make it simpler. Okay. So first we will write angle POR equal to, ratio is 5:7, so here you can write 5x, and similarly angle ROQ you can write 7x. Is it clear? So my dear student, okay, now POR, you know this angle which is given as 5x, and ROQ is given. Okay, so now you can say POQ is a line, POQ is a line, and OR is a ray. OR is a ray. You can write angle 1 plus, okay, we will do one thing, we will simply write the name. This is angle, okay, you simply write, नाम ही लिखिए पूरा नाम, angle POR plus angle ROQ equal to 180 degree. This is POR, okay, and this is ROQ. तो ये दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा? 180 degree, and this is called what, my dear student? Linear pair. Okay, what is POR? POR is 5x, ROQ is 7x, 180 degree. So when you add, you are getting 12x, 180 degree. So x equal to 180 divided by 12. So this is into that side, when it goes it becomes divide. So x equal to 15. So we got x as 15. Is it clear, my dear student? Now we can hunt POR. So what is POR? POR is 5x, okay, 5 into 15, you will be getting 75 degree. And what is ROQ? Equal to 7x, 7 into 15 degree. So 7 into 15 degree is how much, you know? How much? 105 degree. Okay. So that means is a ray. Let me write here, is a ray. Now if you see, I found this angle and I found this angle. Is it clear? Now don't you feel these two angles are, you know, vertically opposite angle? So you can write POR equal to SOQ. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? वर्टिकली opposite angle. Is it clear? Therefore what is SOQ? SOQ will be POR equal to, and POR is how much? 75 degree. So this is 75 degree. Similarly, you know this angle, you can get this angle, and these two angles are vertically opposite angle. So what can you write? Angle ROQ is equal to एंगल POS. शॉर्टकट में आप ऐसा लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल. इज इट क्लियर, माय डियर स्टूडेंट्स? देयरफॉर एंगल POS इक्वल टू 105 डिग्री. करेक्ट? सो वी हैव फाउंड द लेफ्ट ओवर एंगल्स. इज इट क्लियर? ओके, समझ आ गया बच्चों? ओके, बढ़िया. नाउ माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर इनटू एग्जांपल 2. Okay, so in example 2, what is there? OT bisects angle SOQ. Okay, so where is SOQ? ध्यान से देखिए बच्चों, ये है SOQ,
ठीक है, SOQ को OT बीच से कट कर रहा है, बीच से। ओके, सो व्हेन यू कट एनी एंगल एट द सेंटर यू गेट टू हाफ्स, ऊपर आधा आ जाएगा और नीचे आधा आ जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ यू सी POS is x degree. Now next is OR bisects POS. This is the angle, and OR is bisecting. Bisecting means cutting the angle at the center. So my dear student, this total angle is x. Okay, तो x को आधा करेंगे तो क्या मिलेगा? x/2. So that means this angle will be x/2 and this angle will be x/2. That is the meaning of bisection. और एक बार मैं आपको बताता हूँ अच्छे से. So this is suppose total angle is 60 degree. Total angle is 60 degree. Now you are bisecting this angle. You are bisecting. तो ये जो है बच्चों, ये है bisector. Okay, that means ऊपर का हो जाएगा 30 डिग्री और नीचे का हो जाएगा 30 डिग्री, आधा हो जाएगा एंगल, एग्जैक्टली आधा. ठीक है बच्चों, अगर ये टोटल एंगल z होता तो क्या होता? ऊपर का एंगल आ जाता z/2 आधा, नीचे का एंगल आ जाता z/2. तो बाइसेक्टर इज़ वेरी सिंपल. इट इज़ जस्ट लाइक कटिंग एन एप्पल. ये एप्पल है बच्चों, ठीक है, ये पूरा एप्पल का जो मास है 100 ग्राम है. आपने इसको बीच से बाइसेक्ट कर दिया तो बच्चों ये क्या है? ये है बाइसेक्टर. तो यू गेट 2 हाफ्स. ओके, मिला ना 2 हाफ. अब बताइए 2 हाफ का मास क्या होना चाहिए? सो दिस विल बी 50 ग्राम एंड दिस विल बी 50 ग्राम. सेम लॉजिक, कोई हार्ड नहीं है. बस आप एंगल को बीच से कट करते हो तो आधा ऊपर हो जाएगा, आधा नीचे हो जाएगा. तो ये टोटल एंगल x था, मैंने इसको बीच से काट दिया तो क्या होगा बताइए? नीचे वाला x/2, ऊपर वाला x/2. आसान है ना, कोई हार्ड नहीं. जैसे मम्मी किचन में एप्पल को काटती है आधा आधा, वैसे आपने यहाँ पे एंगल को काट दिया आधा आधा. ओके बच्चों, और बताइए सबसे पहले शुरू कैसे करेंगे? सो वी कैन राइट OT बाइसेक्ट एंगल SOQ. So what can you say? SOQ is an angle and OT cuts it. So upper half and lower half are equal. So can I say like this? Angle SOT is equal to angle TOQ. Is it clear? Okay. Next come OR bisects angle POS. So where is OR? This is OR. OR is bisecting angle POS. So lower half, upper half will be equal. So what can you write? You can write angle POR is equal to POR. दूसरा देखिए बच्चों क्या जाएगा? Angle ROS equal to x/2. Is it clear? तो बाइसेक्ट से डरना मत. बाइसेक्ट मतलब एंगल को बीच से काटना. नेक्स्ट, व्हाट यू वांट? वेल, वन मोर लॉजिक. फिलहाल आप सबको मत देखिए, फिलहाल यू ओनली सी दिस पार्ट. ओके, आई एम ड्राइंग दिस फिगर वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट. दिस इज P, दिस इज O, दिस इज Q and this is S. The total angle was X. Can you tell me what is this angle? Come on, do the guessing and tell me. You know that sum of this triangle angle is 180 degree. Okay, so when this is X, this has to be 180 minus X. Okay बच्चों, तो कैसे लिखेंगे बताइए? आप ऐसे लिख सकते हो एंगल POS प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री. मैंने लिख दिया लीनियर पेयर. सो दिस इज X प्लस SOQ इक्वल टू 180 डिग्री. तो व्हाट इज एंगल SOQ? 180 माइनस X. इज इट क्लियर? सो आई गॉट दिस एंगल SOQ. सी, ये फिगर है तो कभी आपको ये फिगर को ऐसे देखना है, तो यानी यू नीड नॉट सी एवरीथिंग इन द फिगर, यू हैव टू सी ओनली व्हाट यू वांट. इज इट क्लियर? तो मैंने देखिए ये फिगर में ये लाइन को नहीं देखा, ये लाइन को नहीं देखा,
मैंने ये बना दिया है, राइट। सो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को देखें, आप वही चीज़ को देखें जो आपको चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए अब बताइए, नेक्स्ट इज OT बाइसेक्ट्स एंगल SOQ। तो OT ने क्या किया, SOQ को बीच से काट दिया, तो आधा ऊपर आधा नीचे। टोटल आपको कितना मिला बच्चों, बताइए टोटल कितना मिला? यू गॉट 180 माइनस एक्स। तो इसका आधा कितना होना चाहिए बच्चों, बताइए। कोई बात नहीं, 180 माइनस एक्स बाई 2 कर देना है, दैट्स ऑल, नो डिफरेंस। ये क्या आ जाएगा बच्चों? 180 माइनस एक्स बाई 2, दैट्स ऑल, इतना ही है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ऐसा करते हैं, तो OT बाइसेक्ट SOQ, देयरफॉर एंगल, ऊपर का एंगल नाम SOT इक्वल टू TOQ इक्वल टू 180 minus x by 2. Is it clear? Okay. Now you can distribute 2 to both side. तो 180 by 2 minus x by 2. ठीक है बच्चों? अब तो मैंने क्या किया, 2 को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 2 से कट करेंगे, यू विल बी गेटिंग 90 माइनस एक्स बाई 2। तो ये हमको मिल गया एंगल SOT। अभी आपको निकालना है एंगल ROT, रॉट। सी केयरफुली बच्चों, यहाँ मत देखिए, आगे देखिए, एंगल ROT। तो व्हाट इज एंगल ROT? फिगर में ढूंढिए, कहाँ है? ROT, ये है एंगल ROT। आपको लग रहा है ROT के अंदर में 2 एंगल बसा है? कौन सा 2 एंगल? एक है ROS और एक है SOT। तो मैं लिखता हूँ एंगल ROT इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT। नाउ माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज एंगल ROS? कहीं पे दिख रहा है ROS? ये देखिए, दिस ROS इक्वल टू x बाई 2, इवन फिगर में भी लिखा हुआ है ROS इक्वल टू x बाई 2। तो आई विल राइट हियर x बाई 2। व्हाट इज SOT? SOT कितना है? SOT यहाँ लिखा देखिए, 180 माइनस एक्स बाई 2, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके आई गॉट 90 माइनस एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 कैंसल, आंसर इज 90। सो दैट मीन्स दिस एंगल SOT इज 90 डिग्री। तो बच्चों समझ में आ गया? तो ये है सम। क्लियर? तो बाइसेक्टर में घबराना नहीं, बाइसेक्टर मतलब एंगल को हम बीच से कट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? सो इफ द एंगल इज x, आई एम ड्राइंग ए बाइसेक्टर, then what happens to the angle? The angle gets divided into 2 half. One half becomes x by 2, another half becomes x by 2. If the total angle is y, I am drawing a bisector, then what happens? The angle gets divided into 2 half. One half becomes y by 2, another half becomes y by 2. Is it clear? Okay, my dear students.